So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. We are back with the Wednesday session, and we are also back from our spiritual retreat in Rishikesh. It was a wonderful, amazing experience, and being one with all the total 16 participants in the group. So there was tremendous bonding, and the energy level was really good. And we had a lot of learnings, not only the participants, but also the faculty, you can say your teachers say, huh? So me and Sanjeev, I was sharing with Sanjeev also. So there was a lot of learning for us also. And since this was our first spiritual retreat, which we had actually planned, so there's a lot of learning for us also. And very soon we are planning that to be a regular feature every quarter. So definitely we'll have a lot more of fun and more of gyan and more of transformation available for all of us. Yes. So let's have a big round of applause for all the people who were in the retreat and those who are present here. Let's acknowledge everybody. Yes. Great. And now we are coming back to our Wednesday session. And the topic for today is the Ashtanga Yoga, the 8 limbs of yoga. Before the retreat, in the last Wednesday, we talked about the 4 paths of yoga. याद है सबको? पिछले वेडनेसडे में उसको रिकॉर्डिंग भी मैंने डाला था यूट्यूब में. वी हैड टॉक्ड ऑफ कि योग के 4 मार्ग कौन से हैं. तो हमने बात करी थी उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, है ना. और ज्ञान योग का तो हमने थोड़ा सा तड़का देख ही लिया था हमने अपने स्पिरिचुअल रिट्रीट में व्हेन वी टॉक्ड ऑफ द वेदांता विजडम. सो ज्ञान योग इज ऑल अबाउट the Vedanta wisdom, the Ashtavakra Gita, the Bhagavad Gita, all the Vedas, all the Upanishads, उनका जो ज्ञान है, तो वो हम ऑलरेडी एक उसका जायका हम ले चुके हैं, बिकॉज वो ऐसे नॉर्मल प्रोग्राम में नहीं दे सकते. नॉर्मली आई कवर दैट इन आवर वीकेंड प्रोग्राम्स विच आर नॉर्मली द पेड प्रोग्राम्स. तो उसके 7 सेशंस या 11 सेशंस एक साथ कराते हैं कमिटमेंट के साथ, तब उसमें थोड़ा सा फायदा दिखता है. एंड वी फर्स्ट टाइम वी हैड ट्राइड दैट इन ए रिट्रीट विच क्लिक्ड वेरी वेल. सो that is a part of the Gyan Yoga. So now coming back to what are we going to do today? We are going to start a series of sessions in the Wednesday group, which will be talking of Raj Yoga. So we're going to talk of Raj Yoga. Raj Yoga is the path of the yogi. तो योगी का मतलब क्या है? योगी का मतलब है कि इसमें हम जो अष्टांग योग है या फिर जो ब्रह्म कुमारी इसका राज योग है, राज योग मेडिटेशन, तो मेडिटेशन पे ध्यान ज़्यादा जाता है इसमें. एंड ध्यान या प्राणायाम या फिर योगा आसन, तो इन पे इनका फोकस होता है. तो इसमें ये कैसे हम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये सेज पतंजलि ने बहुत पहले, इनफैक्ट दैट ही इज द फाउंडर ऑफ दिस अष्टांग योग, तो उन्होंने अपने योग सूत्र में पूरा ये डिटेल्स बताया है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमको समाधि स्टेट पे ले जाएंगे. तो उसके लिए ये अष्टांग योग फेमस है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू अष्टांग योग क्या है और उसके 8 लिम्स कौन कौन से हैं, यानी कि 8 उनके भाग कौन कौन से हैं, उस पे हम एक ओवरव्यू देंगे. और अगले सेशन से हम एक एक लिम्ब की डिटेल्स में जाएंगे एंड देखेंगे कैसे हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसे प्रैक्टिकली अपना सकते हैं और उससे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट द पाथ विल बी फॉर टुडे. यस. एंड मीनवाइल लेट मी वेलकम पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन. सो शीतल जी वेलकम, Kapil Mitra ji welcome, Vijay Bahadur ji welcome, Veena ji and OnePlus मेरे ख्याल से सीरज मैम हैं, तो welcome. Let's acknowledge everybody who is coming. Thank you, sir. Yes, Vijay ji. तो विजय जी अगर आप थैंक यू सर. Okay, OnePlus is Leslie. Okay, very good. Good to see you, huh, Leslie. So you and Gurkirat ji were missing the retreat most. So good that you are here. We can relive the whole experience. So yes, anything you want to share, Leslie, about the retreat? We just had a informal conversation. तो retreat को कितना मिस कर रहे हो, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो, so that others will also get inspired to join us in the next program. Well, for me, retreat से अभी तक मैं grounded नहीं हुआ हूँ. I'm still on a high. And मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कॉलेज डेज और स्कूल डेज खत्म हो गए. Come back. So it feels as if मैं जैसे हॉस्टल में पढ़ा था तो मेरे को एकदम सडनली दिल्ली आ गया हूँ मैं. Okay, great.
So yeah, so I mean, like, had a very, very good time, and time was good, but people were extremely good. The company was extremely good, and जिस तरीके से हम लोग सारे के सारे जेल करे, like लगा ही नहीं कि हम लोग अलग अलग फैमिली से आए हैं, पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे Right. घुले मिले, ऐसे नाचे हैं, ऐसे एक एक होके बन के हम लोग सब झूमे हैं. That was amazing. Wonderful, wonderful. Let's acknowledge Leslie for his sharing right from the heart. Huh? And the main thing is that this is the power of satsang. जो हम बोलते हैं ना सत्संग की महिमा जो बोलते हैं, जो हमको बहुत theoretical लगता है. This is the actually the experience of the satsang. When like-minded people join with a purpose, and the purpose is not something which is very, very, you can say the lower level purpose. It is the highest level of purpose. We are talking of Gyan Yoga. We were talking of the enlightenment. We were talking of self-realization. And that kind of satsang is obviously the greatest, you can say, the input in terms of value that you can get, and also the biggest contribution you can make to another soul. So that was the beauty of this retreat. So again, let's acknowledge everybody who participated in it. Big round of applause for everybody. Yes, and also a message to others that next time when we have, you should jump in, because it is an extraordinary experience. It cannot be expressed in words. It has to be experienced. And that is the beauty of it. Yes, welcome, Vijayji. Our expert in photography of the retreat. Yes, very good. Oh, Dolly, Nivedita ji, very good. Welcome. Yes, तो विजय जी सबने शेयर कर लिया. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे रिट्रीट से, तो प्लीज गो अहेड. शशिधर जी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे संदीप जी को और ममता जी को भी देख के. और ऑफ कोर्स आई मीन गुरकीरत, लेस्ली को तो मैं पहले से देख रहा हूँ, अभी तरुण भी आ गया. तो ऑफ कोर्स आई मीन द रिट्रीट वाज अमेजिंग, नो डाउट अबाउट इट. एंड मतलब एज लेस्ली में पुट इट, मेन मजा जो रहता है वो तो साथ में मिलके लाइफ को जॉयफुली एंजॉय करने में है, जो हम लोग ने भरपूर किया 3 दिन के अंदर. 100%. Totally agree. तो बाकी साथ में जो नॉलेज का वर्धन हुआ और जो अमेजिंग चीजें देखी और एक्सपीरियंस करी, वो तो है ही है. वो तो एक्सपेक्टेशन मेरा पहले से था. Yes. So listening to you for past so many years, I'm used to listening some wonderful things from you, and I always say कि भाई और कुछ नहीं तो वेडनेसडे सेशन तो ज्वाइन करना ही करना चाहिए. Very good. Thank you. और कभी भी कोई ऐसा फिजिकल मौका मिलने का तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए. Perfect. Let's acknowledge Vijay ji. Great. So I think I've covered everybody who shared. Tarun is there. Tarun, anything you want to share about the retreat? You were the main person who was instrumental in organizing many aspects of that retreat. Yes. ये Zoom मीटिंग चल रही है ना मेरी. Thank you, sir. सबके कैमरा वैसे हैं. Undoubtedly, it was a great experience, and witnessing the power of mind was something really powerful for me to understand the magic, how this can transform whatever you imagine. So it was a big eye-opening for me, and of course, the wisdom which you have shared, we have already implemented those things, some of those things, and seen the magic. And now getting a new perspective to those things, having a bigger horizon with those elements, how to inculcate in life, will definitely benefit more. And definitely a lot of self-reflection has happened on the trip, which has made me to see what changes I have got in myself and what I more need to work upon to be better. So it was a commendable or marvelous, or the best word which I can do is use for this journey is that can be given to that. And of course, a good roommate who was even then sleeping half sleep, but was ready to hear me out. And it was good to see the kind of patience he had. So learned a lot from him also. Who was your roommate, by the way? Okay, got it. Perfect. Let's acknowledge everybody who shared. Very good. Yes. So obviously the learnings are there. The pearls of wisdom are with you.
and now we need to practice it, imbibe that into our life, and so that they grow, है ना? तो ये seeds हैं, these are seeds of divinity which has been sown into each one of us, and this has to be nurtured so that the seed blossoms into a tree. How many of you remember the story of seed and the tree? Yes, seed and the tree, remember? Yeah. So the seeds are there, now it has to blossom into the tree and the magic will happen. Very good. Let's acknowledge everybody. Great. Now the others are waiting कि ये क्या कब खत्म होगा, कब हमारा topic शुरू होगा. So yes, now we are back to the topic. So the topic for today is the sage Patanjali's Yoga Sutra, the Ashtanga Yoga. Yes. So I'm sure many of you must have already be aware of this, the Ashtanga Yoga, but just to give you a glimpse of what it is an 8 steps of the yoga that Sage Patanjali has listed out, which is a part of the Raj Yoga. So it is a path which the yogis follow so that you can follow the path of meditation, self-introspection, meditation. That is what this path is, right? So the 8 paths, anybody who is brave enough to name or list out the 8 steps, if you remember. किसी को मालूम है? Anybody who would like to share that? I had posted it, in fact. So anybody who must have gone through the post would have seen that. हाँ, तो कोई देखना चाहता है, कोई बोलना चाह रहा है? 8 steps कौन-कौन से हैं? अष्टांग योग, Sage Patanjali Yoga Sutra. That is a source from where we have taken this, right? Okay. I'm sure many of you know that, but we will start with that. Okay. The first 2 steps are actually the lesser known of them. So, and people actually don't practice it because उनको वो moral science लगता है. तो moral science नहीं है वो. These are the basic steps. Without that, you will not progress much on this Ashtanga Yoga path. So the first is called Yam. Yam or Yama. So Yama is basically, there are 5 subtopics to it, which we will see in details in the next session. So Yam is basically, you can say, your behavior or your conduct in the outside world. तो outside world में जब आप संसार में जी रहे हो, तो और लोगों से कैसे आप, सोसाइटी से कैसे आप बात करोगे, कैसे इंटरेक्ट करोगे, आपका कंडक्ट कैसा होगा, उसके ऊपर ये 5 सब टॉपिक्स हैं यम के. और जस्ट टू लिस्ट आउट क्या है वो, नंबर 1 इज अहिंसा, नॉन वायलेंस. So I'll just say one word. We will deal into the details of it later, right? Next session. तो यम का पहला है पार्ट अहिंसा, which is non-violence. Then second is truth. Truth is सत्य. तो सत्य सिर्फ बोलना ही नहीं है, सत्य में जीना है. You have to be established in the truth of your existence, truth of your life, truth of the whole universe, truth of the God. So all that is part of that सत्य. तो सत्य और धर्म को मान सकते हैं जो यम का सेकंड पार्ट है. तो फर्स्ट इज अहिंसा, नॉन वायलेंस. सेकंड इज सत्य, द ट्रुथ. थर्ड इज brahmacharya. Brahmacharya is basically moderation, or you can say in the one meaning it is the life of celibacy. That means you don't have to get into the monkhood. Those who are married, जो गृहस्थ में हैं, they will be committed to their partner and live a moderate life of married life. That is also part of brahmacharya. So in short, you can understand brahmacharya as moderation, balance में जीना है, right? That is brahmacharya. Then you have asteya. Asteya is non-stealing. You will not desire or you will not possess anything that is not yours. That is the basic meaning of asteya, non-stealing. Now it is not only of objects or person, it is about ideas also. किसी और के ideas को चुराना नहीं है, अपना बोल के उसको आगे नहीं बनानी है. तो even the thoughts, the ideas which you are taking from others, don't name it under yourself, you name it under the original name. So even that level of non-stealing is the part of asteya. And the 5th part is called aparigraha. Aparigraha. Parigraha is accumulation. So aparigraha means non-accumulation. तो जो आपको नहीं चाहिए, जो आपकी नीड नहीं है, वो आपको accumulate नहीं करना है. So if you have something extra which you think is beyond your needs, share it with people. Leave your attachment to that. Let go of your attachment and share that with the people.
So that is in short the 5 steps of YAM. ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ गई, बाकी हम डिटेल्स में अगले सेशन में बात करेंगे. Second limb of Ashtanga Yoga is called Niyam. Now, Niyam, as we all know, is a routine or a discipline. तो ये हमारे इनसाइड वर्ल्ड के लिए है. ये हमारा वो डिसिप्लिन है जो हमको यम के 5 पॉइंट्स को फॉलो करने में मदद करेगा. तो इफ यू हैव टू फॉलो दोस 5 डिसिप्लिन्स ऑफ यम, यू नीड दीज 5 डिसिप्लिन्स ऑफ नियम और डिसिप्लिन, राइट. इसमें क्या है? सबसे पहले है स्वच्छता. दैट मीन्स यू कैन से क्लीनलीनेस, बाहर का क्लीनलीनेस और अंदर का क्लीनलीनेस. तो इसको हम बोलते हैं स्वच्छता, या इसको बोल सकते हैं हम क्या बोलते हैं, जैसे स्वच्छ अभियान था हमारा, राइट. तो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान किया था, तो वैसे ही ये दिस इज अबाउट प्योरिटी. तो प्योरिटी इन द आउटसाइड वर्ल्ड, प्योरिटी इन द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ योर नॉट ओनली द एक्शंस बट ऑल्सो ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस. सो प्योरिटी, राइट. तो स्वच्छता बोल सकते हैं या शौच बोल सकते हैं इसे. तो शौच और स्वच्छता इज द फर्स्ट स्टेप. Second is santosh, contentment. Everybody is aware of that, contentment. So we should be contented with the results, not contented with our actions, or not contented with our what you can say behavior, right. तो अपने efforts से आपको संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि results से संतुष्ट होना है. And then try your best to keep improving. So we are all work in progress. Yes, we all know that. हम प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी चेतना को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, और उसके लिए हमको कंटेंटमेंट की जरूरत है विद द रिजल्ट्स. जो भी रिजल्ट आए एक्सेप्ट कर लो, बी कंटेंटेड इन दैट एंड कीप स्ट्राइविंग टू इंप्रूव योरसेल्फ. सो दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ नियम. तो शौच, संतोष. यस. देन यू हैव थर्ड इज तपस. तपस इज बेसिकली यू कैन से द डिटर्मिनेशन टू walk on the spiritual journey, or determination to achieve anything that is really important for you. So tapas, that means determination, you can say willpower, you can say fortitude. किसी भी चीज को पाने के लिए जो आपकी दृढ़ता है, जो आपकी दृढ़ निश्चय है, that will be part of that tapas. Yes. Then you have swadhyay. Fourth is swadhyay. Swadhyay we all know, self introspection, but we are experts in doing पर अध्याय. औरों को हम अध्ययन करते रहते हैं, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, तेरे को ये इंप्रूव करना है, तेरे को वो इंप्रूव करना है. मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट. हाँ, तो दैट इज नॉट स्वाध्याय. स्वाध्याय इज द ऑपोजिट ऑफ दैट. दूसरों को जैसा है एक्सेप्ट करो, अपने को इंप्रूव करना है. तो अपने अंदर झांकना है और देखना है मेरी इंप्रूवमेंट और कहाँ होगी, कैसे मैं चेतना के अगले ऊंचाई के स्तर पे जाऊं. और उससे अगर दूसरा कोई इंस्पायर होता है, ग्रेट. तो आई विल वॉक माई पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. I will do my sadhana, I will do my seva, I will do my satsang, I will raise my consciousness, and in the process if somebody gets inspired, great, I will take them along, right. तो स्वाध्याय करना है, पर अध्याय नहीं करना है. क्लियर है? तो all that blame and you can say जो भी हमको bad qualities बाकियों में दिख रही हैं, वो हमको उससे, if they ask for a feedback, you are free to give them. बट डोंट इंसिस्ट कि तुमको इंप्रूव करना है तभी मेरी जिंदगी सुधरेगी. नो, वो जैसे हैं बिल्कुल सही हैं. सही नहीं है मतलब जैसे हैं परफेक्ट है. हाँ, मुझे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, मुझे चेतना के ऊंचाई पे जाना है, तो मेरी अपनी साधना चलेगी. क्लियर है? दैट इज नंबर 4. इट इज टफ. यस, इट इज टफ बिकॉज वी आर, हमारे अंदर एक वायरस ऑलरेडी है कि औरों को सुधारना है. दूसरे सुधर जाएं तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी. तो ये कीड़ा जब तक रहेगा हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम पर अध्याय ही करते रहेंगे. तो हमको बाहर नहीं देखना है, अपने अंदर देखना. सो दीज आर द बेसिक ग्राउंड रूल्स which are important to progress on the spiritual journey. Yes. And the fifth part of niyam is Ishwar Pranidhana. Ishwar Pranidhana means surrender to the divine. Yes. तो surrender to the divine कहना बड़ा आसान है, बट इसमें सब कुछ आ जाएगा. यू हैव टू हैव फेथ, श्रद्धा, भक्ति, और अपने ईगो को सरेंडर कर देना भगवान के लिए कि जो कुछ मिला भगवान से ही मिला है, तो भगवान को ही सब कुछ अर्पण कर देना. तो इसके डिटेल्स में जाएंगे हम when we do the session on niyam. So I'll stop a little now and just give you some time to reflect on these 10 points which are packed into the 2 levels of yam and niyam.
तो यम के 5 पार्ट्स, नियम के 5 पार्ट्स आपने सुन लिया, याद बेशक ना हो, बट अगर कोई डाउट आपके दिमाग में आया है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, this looks like moral science, but it is much more than moral science. It is a foundation for the next 6 limbs. So this is very, very important. You can't ignore this, you can't neglect this, otherwise you will not proceed much into the higher levels. Yes, any questions? Or you can share your understanding. कौन बोलना चाहेंगे? आज ओवरव्यू है, so you can have your views. Yes, Anup, welcome. हाँ नमस्ते जी। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो योग सूत्र ऑफ पतंजलि है, दिस इज द नंबर 1 सेलर ऑफ इन अमेरिका इन amazon.com। तो ये मतलब ये जैसी बुक वहां आती है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है एक ही दिन के अंदर। अच्छा। इसकी इतनी डिमांड है, इतनी Okay. डिमांड है योग सूत्र ऑफ पतंजलि। ओके। और हाँ बाकी व्हाट यू सेड इज राइट। इसमें जो एक वो है जो आपने एक सूत्र बताया अभी, तो दैट इज रिलेटेड टू एंगर, कि एंगर इज वन ऑफ द बिगेस्ट deterrent for us, because anger से we cause harm to others, and as soon as we cause harm to others, चाहे वो हम बोल के करें, चाहे हम कुछ हाथ से करें, चाहे हम सोच के करें, so it pulls back our spiritual journey और it वहीं पे रोक देती है। तो वो जो एंगर है, आई थिंक वो सेकंड सूत्र था जो आपने बताया था, कौन सा था वो? एंगर मैंने बोला नहीं था, बट यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू, अगर वो आपके स्वाध्याय में आ रहा है, अगर आप स्वाध्याय करें और आपको लगे कि आपके अंदर जो 6 बताए थे उनमें से आप एक बार रिपीट करेंगे फिर से? हाँ, कौन रिपीट करेंगे बताइए, किसने ध्यान से सुना है? क्या चीज सर? अबाउट यम के 5 पार्ट्स और नियम के 5 पार्ट्स कोई यम है? के तो अहिंसा, सत्य, brahmacharya is moderation, living in moderation. Yes. Astriya, where we let go of our desires, don't have unwanted desires, and non-accumulation, which is aparigraha. अपरिग्रह, या Aparigraha, Yes. non-accumulation of unwanted things. So these तो are the ये 5 बाहर की things दुनिया of में है, बाहर यम की दुनिया में हमको कैसे अपना कंडक्ट करना है, करेक्ट? करना है। हाँ, तो जो अहिंसा है, हाँ। that aligns with anger. So if we don't have anger, if we shed our anger, so our ahimsa will automatically happen. We will not do any हिंसा, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो, किसी के प्रति भी हो। Yes. तो this is directly linked to that. Okay, so non-violence can be connected with the anger. Yes. तो एक हमारा जो जैसे जिसको हम पंच दूष बोलते हैं, पंच दोष बोलते हैं, उसमें एक एंगर भी आता है। सो अहिंसा इज रिलेटेड टू दैट, सो दैट अलाइंस ब्यूटीफुली विद इट। वेरी गुड। और बाकी एवरीथिंग इज राइट, एंड आवर स्पिरिचुअल जर्नी हैज टू बी in progress with all of these. We can't, so as soon as we have one of these vices, तो हम वहीं stationary हो जाते हैं till we don't overcome it. So this is what I wanted to convey to everyone. Okay, perfect. So when you are doing swadhyay, and if you see you have one of the vikars, ये विकार कोई भी हो सकते हैं, हम षड रिपु बोलते हैं, 5 नहीं 6 एनिमीज हम बोलते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो उसमें जो काम, क्रोध जो है दैट इज एंगर। और अगर स्वाध्याय में आपको दिख रहा है कि मे बी डिजायर्स, मे बी एंगर इज द डेटरेंट, ये है जो आपको रोक रहा है, तो इससे फ्रीडम जो मिले आपको, उसके लिए जो आप साधना करेंगे, दैट विल बी after swadhyay you can go on your spiritual journey to get yourself free from this anger, which will also result in non-violence, which Anup has rightly said. Very good, let's acknowledge Anup. Very good. Okay, any other understanding anybody wants to share? और कोई शेयर करना चाह रहे हैं? मेरा एक पॉइंट है जी। हाँ जी अनिरुद्ध जी बोलिए। हाँ जी, ये 10 पॉइंट हैं, मैं इन पे सब पर मैं एग्री करता हूँ। और बस एक पॉइंट जो है नॉन वायलेंस का, उसमें थोड़ा सा एक वो है कि महावीर जी ने कहा है वो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, बट गीता में वायलेंस हुआ है।
और चलो दुर्योधन को मारना तो ठीक था, परंतु जो आर्मी थी दोनों तरफ की, उनका तो कोई कसूर नहीं था और उनकी फैमिली का कोई कसूर नहीं था, वो भी बेचारे मारे गए और फैमिली ने बहुत सफ़र किया। तो ये फिर इसका मतलब उन्होंने नॉन वायलेंस की है, वायलेंस किया, सॉरी। हाँ, वार में तो वायलेंस होता ही है। हाँ जी, उन्होंने वायलेंस की, उन्होंने नॉन वायलेंस को माना नहीं, क्योंकि नॉन वायलेंस जो हुई है फैमिली के साथ हुई है। दुर्योधन के चक्कर में फैमिली का बहुत बहुत नुकसान हुआ। नॉट ओनली फैमिली, द होल 3 डायनेस्टीज वर वाइप्ड आउट। हाँ जी, सारी 3 वाइप आउट हुई है। जनरेशंस खत्म हो गए थे तो वहां पे। उन्होंने पतंजलि को नहीं माना कृष्ण जी ने। अगले सेशन में बात करते हैं डिटेल्स में, आपका पॉइंट Okay. सही है। अगर वार होगा तो नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं किया, विच इज अ फैक्ट। यस सर। यस, वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी? ओके, या, वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया। राइट, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू शेयर आपके जो भी विचार हैं, यम और नियम, अभी हमने 2 पार्ट्स कवर किए हैं। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो इन्होंने हाँ अभी पॉइंट उठाया महाभारत का ये या पॉइंट पे हम कल रामायण। बात करेंगे, अगले सेशन में बात करेंगे, जब हम यम की बात करेंगे, है ना, उस पर डिस्कशन नहीं करनी है। आपका कोई और एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करना है तो करिए। राइट, एनीबॉडी? सर एक चीज है कि ये जो यम और नियम में जो भी 10 पॉइंट्स हैं, ये ऑल लाइक विजन कि वी मस्ट अचीव ऑल दीज। यस, बट इट इज इजी सेड देन डन, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू अचीव देम। एंड हमारे जो सामने परिस्थितियां हैं, उनमें कैसी भी परिस्थिति में इनको फिर भी पालन करते रहना is a very Yes. tough thing. Yes. And that's what we need to learn, and we have to have that faith कि इसको यूज करने से हमें फायदा होगा, क्योंकि at times we may feel कि ये सब बेकार है, knowing the situations, and we have to do something different. तो वो जो स्ट्रगल होता है ब्रेन में हमेशा, ये ठीक है या कुछ और ठीक है, वो ही समझ पाना जो है, आई थिंक सही ज्ञान होगा। Yes, जब वो समझ आ absolutely जाएगा। right. Absolutely right. Because these are guidelines. These are values which are the ideal ones. आपकी हमारी जो लाइफ सिचुएशंस है वो आइडियल नहीं है और ना ही हम परफेक्ट हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ पे ये हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो दैट वी आर बिकम अवेयर ऑफ इट। एंड एज यू बिकम अवेयर ऑफ इट एंड एज यू रेज योर कॉन्शियसनेस, यू विल मूव टूवर्ड्स इट। इसकी तरफ बढ़ना है हमको, एक एक कदम बढ़ा के। बट ये जैसे बोलते हैं ना, ये वैल्यूज हैं, ये गाइडलाइंस हैं, ये आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये है जो आपको जहाँ पहुँचना है। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमको मालूम तो पड़ गया कि हमारे पास ये नहीं है। अब जैसे अगर नॉन वायलेंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं हम, अगर वायलेंस कर रहे हैं इन थॉट्स, मे बी इन वर्ड्स, मे बी इन एक्शंस, then we at least we know that we are not there, so it will help us to move towards that direction. Yes, तो यहाँ पे शुरुआत पहले अवेयरनेस में लाना जरूरी है और फिर उसके लिए साधना करना जरूरी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो है ये हर एक के अंदर है। हमको ये देखना है ये किस लेवल पे हैं और उस लेवल को हमको धीरे धीरे उन विकारों को खत्म करना है, तो इसलिए आगे बढ़ना है। राइट, वेरी गुड। सो दैट इज व्हाट इज स्वाध्याय। इसी स्वाध्याय से ही पता लगेगा हम कितना आगे बढ़ रहे हैं और कितनी दूर है। यस, वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज ममता जी, बहुत बढ़िया। यस, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? जी नमस्ते सर। यस जी यस, सर, शीतल जी, शीतल जी नहीं है हाँ, आप? पूजा मेरी बेटी है जी। या ओके, गुड। मैं एक चीज जो समझ पाती हूँ इससे ना, कि एक तो क्या होता है कि अगर स्पिरिचुअलिटी जैसे आप जिस पाथ पे जा रहे हैं ना, उसका सीड आपके अंदर ना शायद बचपन से या कहीं से होता है, वो आगे जाके ना मैच्योर होता है एक एज ग्रुप पे। और ऐसा मैं समझती हूँ कि इसमें इस रास्ते में चलने के लिए सबसे जो मस्ट है ना, इट्स प्योरिटी ऑफ योर सोल एक्चुअली। अगर आपकी सोल में क्लीननेस है तो अपने आप आपको पाथ ना मिलता चला जाएगा एंड चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी उसमें। और दूसरा फिर ये है कि स्वाध्याय में क्या है कि जब आपके अंदर अवेकनेस आ गई कि मुझे उस पे चलना है, जैसे कि मेरी अपनी सेल्फ, अभी पहले सारी चीजें परेशान करेंगी आपको, लेकिन जब आपको अंदर से समझ में आ जाएगा कि ये सेल्फ एनालिसिस मेरी अपनी सोल का है,
क्योंकि देखिए बाहर वालों के रिएक्शन तो कभी चेंज नहीं होंगे, पर आपने अगर अपने ऊपर कमांड कर लिया तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा एंड जो प्रॉब्लम्स कभी बंद नहीं होंगी, बट आप जो पॉजिटिव अप्रोच से काम करेंगे तो उसके जो डिफरेंट जो रिजल्ट्स है वो आपको दिखने लगेंगे। ऐसा मतलब मेरा मानना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तब तो लर्निंग है एंड Yes. it's not a small journey, it's a long run journey। मतलब आप समझ लीजिए आपकी लाइफ शायद लर्निंग के लिए ही इस पे बन जाती है। यही आखिरी लाइफ स्टेज टाइम तक नहीं, हाँ यस, सिर्फ ये लाइफ आखिरी टाइम नहीं स्टेज है, आपके पास बहुत सारे लाइफ टाइम्स मिले हैं लर्निंग के लिए। जी जी। और ये बहुत मतलब ये इतना बड़ा टास्क अभी हमें दिखता है, बट एक एक दिन अगर एक एक दिन हम उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि वो हम उसको अचीव कर लेते हैं, जिसको स्वाध्याय आप कह रहे हैं, और वो सेल्फ कमांड आप पे कर ली, तो फिर बाहर की चीजें उतना रिफ्लेक्शन आपको नहीं देंगी जितना आप अभी फील करते होंगे। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शीतल जी, लेट्स एक्नॉलेज। ओके, सॉरी आई फॉरगॉट, योर नेम इज नॉट शीतल राइट? आपको अपना नाम बताना पड़ेगा एक बार फिर से, भूल गए। पूजा। पूजा, यस। तो पूजा जी ने बहुत अच्छा बोला है कि स्वाध्याय करना है, और जैसे आप ये बोल सकते हैं कि जैसे यम के 5 पार्ट्स हैं, तो हमको स्पेसिफिकली जैसे आप बोले कि मंडे को मैं कॉन्शियसली अहिंसा को फॉलो करूंगी, काइंड ऑफ स्टफ। सेकेंड डे मैं ट्रुथ को आज फॉलो करूंगी। सो मेक ए डे स्पेसिफिकली फॉर दैट क्वालिटी। बाकी भी करते रहिए, लेकिन एक पे फोकस करना है, तो उससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस उस वाले क्वालिटी पे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो टेक स्मॉल स्टेप्स, एकदम से जंप नहीं करना है कि मेरे को ये सारे 10 पॉइंट्स कल सुबह तक हो जाने चाहिए, नहीं होगा। कई जन्मों की तपस्या है ये, मान के चलिए। तो धीरे धीरे हमको अवेयरनेस में लाना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, और जो गैप है उसको धीरे धीरे पूरा करना है। बहुत बढ़िया, राइट, दैट इज व्हाट इज स्वाध्याय। बहुत बढ़िया, लेट्स एक्नॉलेज एवरीबॉडी हु शेयर्ड। yes, so if you are comfortable with these 10 points which are packed into the 2 points of yam and niyam, we move to the third part, which is called the third limb is called asana. Now this is where people are aware of it. यहाँ से अवेयरनेस शुरू होती है अष्टांग योग की, जिसको हम आम तौर पे योगासन बोलते हैं। लोग सुबह सुबह अलार्म लगा के, मैट लगा के, और वेदर के मुताबिक अपने कपड़े वपड़े पहन के मैट लेके पहुंच जाते हैं पार्क में, मैट बिछा के वहाँ आसन करना शुरू करते हैं, राइट। अब इसके आसन के बारे में बहुत कुछ है जो आप जानते भी हैं, और बहुत कुछ आप प्रैक्टिस करते भी होंगे, राइट। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे व्हेन वी कम टू द लेवल ऑफ आसन। लेकिन आसन का बेसिक पर्पस क्या है? एनीबडी हु कैन से दैट? आसन का बेसिक पर्पस क्या है? जो हम थर्ड पार्ट है आसन, इट इज कॉल्ड पोस्चर। तो हम अलग अलग पोस्चर्स करते हैं ताकि अपने फिजिकल बॉडी को हम कंट्रोल कर सकें। तो जो पहले तो ये बताइए कितने लोग आसन फॉलो करते हैं, कितने लोग आसन करते हैं सुबह उठ के या शाम को विथ ए ट्रेनर और मे बी of your own, you know that and you do it. Yes, Nivedita ji does it, so I know that. Many others are doing it. I myself have been doing that for maybe more than 30 years. पर्पस क्या है बताइए आसन का, जो हम आसन करते हैं? हम योग बोलते हैं और जिसके अंदर आसन होते हैं योग के अंदर, तो योग मतलब कि जो सुपर सोल और आपकी जो सोल है उसको कंबाइन करना, उसका योग करना, समेशन करना, उसका एडिशन करना, तो वो उसको योग बोला जाता है। और उसकी कई सारी क्रियाएं हैं, तो जिस अंदर एक आसन भी एक क्रिया है, और बाकी अलग तरह के योग भी होते हैं। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। सो लेट्स एक्नॉलेज अनूप जी। एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आसन? बड़ी स्पेसिफिकली, मैं योग की बात नहीं कर रहा, मैं आसन की बात करूं। जो थर्ड लिम्ब है आसन, उसका पर्पस क्या है? यस यस निवेदिता जी। नमस्ते सर। कीपिंग ऑल द सिस्टम्स अप टू डेट। ओके, so you can say keeping all our systems healthy, right? फिजिकल बॉडी के हर पार्ट्स को फिट रखना, हेल्दी रखना, फ्लेक्सिबल रखना। तो हैविंग ए फिट, फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी बॉडी, दैट इज द पर्पस ऑफ योग, दैट वी आसन दैट वी डू। हाँ, योगासन बोलते हैं, बट बेसिकली वो आसन कर रहे हैं हम अभी। हाँ, ओके। I think I can give a perspective. बोलिए। Additionally, body is like your temple, so you have to, I mean, you have to take care of your body. So this is a respect to your own body. Yes. That I really love you and I want to take care of you, because you are the vehicle for me to, even if I have to do spirituality or anything, my body is my vehicle to attain that. Yes, so that's perfect. the respect to the vehicle. Yeah.
Very good. So I'm a soul on a journey and this body has been given to me as an instrument of vehicle. तो उसका ख्याल रखना. So मेरा काम है, तो I keep that fit, flexible and healthy. So that is a very good responsibility I have. So I do it. Very good. बहुत बढ़िया. Let's acknowledge वीना जी for that. Anybody else? Yes, विजय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं भी यही कह रहा था. इनफैक्ट अनूप जी भी बिल्कुल आई मीन टू द पॉइंट कि अगर आप फिजिकली आसनास करके अपने बॉडी को फिट रखेंगे, then you are in a position to receive the energies, and also it will help in mental, intellectual, and ultimately the final whatever you are searching for. You know, the Okay. physical body has to be taken care of. It is a Yes. temple, no doubt. Perfect. तो सबने सही बोला. Let's acknowledge everybody who shared. Yeah. Okay. But the basic purpose of the third limb, asana, is to sit in a posture for about 40-45 minutes. ये मैं पर्पस बता रहा हूँ जो इसका थर्ड लिम्ब का जो पर्पस है. ठीक है जी. 40 minutes to 1 hour you can sit without moving, without any discomfort, without any pain, without any itching. आप 40 मिनट से 1 घंटा बिना हिले डुले स्टैच्यू बन के बैठ सकते हो. वो पोस्चर कहलाता है. तो आप उसको पद्मासन में बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो. बहुत सारे पोज हैं ये सब. इसमें बॉडी को बिना हिलाए डुलाए 40 मिनट से 1 घंटे तक बैठने की प्रैक्टिस करनी है. दैट इज व्हाई आसन इज इम्पॉर्टेंट. और अगर ये हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है. नहीं हो रहा है देन यू गो थ्रू ऑल द स्टेप्स. जहाँ सारे आसन करो. पहले खड़े होके करो, फिर बैठ के करो, फिर लेट के करो, फिर पीठ के बल लेट के करो. सो दैट योर बॉडी इज फिट, फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी. सो दैट यू कैन सिट इन ए पोस्चर. पोस्चर में आप बैठ सकते हो पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में करीब करीब 40 मिनट से 1 घंटा. दैट इज द पर्पस. क्लियर हो रहा है पर्पस? यस. व्हाई? बिकॉज दिस विल टेक यू टू द हायर लेवल. नेक्स्ट हायर लेवल में क्या करेंगे? बॉडी को अगर मैंने बोल दिया कि आप अगले 1 घंटे के लिए नहीं हिलना है, तो बॉडी नहीं हिलनी चाहिए. और अक्सर होता क्या है, जैसे ये मेडिटेशन में बैठते हैं लोग, आसन तो करते नहीं, काफ़ी लोग सीधा मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, प्राणायाम भी नहीं करते, और फिर कहते हैं ध्यान लगता नहीं. क्यों? जैसे ही बैठते हैं पाँव में दर्द, आउच शुरू हो जाता है. 5 मिनट बाद पाँव बदलना है, 5 मिनट बाद कमर सीधी करनी है. ठीक है जी. तो ये सब जो प्रॉब्लम होती है, इसलिए आसन करना ज़रूरी है, ताकि आप एक फिट, फ्लेक्सिबल एंड परफेक्ट हेल्दी बॉडी के साथ एक पोस्चर में 40 मिनट से 1 घंटा बैठ सकें. एनीबडी हु इज डूइंग दैट? जो 40 मिनट छोड़ो, एनीबडी हु इज डूइंग दैट? एक पोस्चर में 20 मिनट तक बैठ सकते हैं बिना हिले डुले. गुड. सो यू आर डूइंग गुड प्रैक्टिस ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ आसन. ठीक है जी. बाकी हम बाद में बात करेंगे. जब इस सेशन पे आएंगे तो हम देखेंगे आसन कैसे कैसे हैं, क्या हैं, और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. बट पर्पस है पोस्चर. और मेन पोस्चर जो होता है वो होता है बैक, नेक एंड हेड स्ट्रेट. एवरीबडी नोज दैट. कीपिंग योर स्पाइन एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड, एब्सोल्युटली स्ट्रेट. क्यों? क्योंकि हमारे 7 मेजर चक्र जो प्राणमय कोश में हैं वो सब स्पाइन में हैं. तो जैसे ही स्पाइन स्ट्रेट होगा, दैट यूनिवर्सल एनर्जी विल फ्लो थ्रू द स्पाइन एंड चार्ज अवर बॉडी एंड माइंड वेरी इजीली. इसीलिए पोस्चर को बैक, नेक एंड हेड स्ट्रेट रख के पोस्चर बनाना है. क्लियर है ये? एनी क्वेश्चंस फॉर आसन? अभी हम इतना ही ओवरव्यू लेंगे. हाँ, राइट. सो द नेक्स्ट स्टेप इज वी कम टू प्राणायाम. आसन के बाद आता है फोर्थ लिम्ब इज प्राणायाम. प्राणायाम एवरीबडी नोज. एटलीस्ट some बेसिक प्राणायाम सबको मालूम होगा. अनुलोम विलोम, या फिर आगे चल के और डिटेल हम करते हैं. भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं. तो ये सब जो भी हम प्राणायाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इट इज elongation ऑफ द ब्रेथ. Why pranayam is important? Why pranayam is so important? It for purification of our body, blood and Yes. air inside. Yes. Normally क्या होता है, our lungs capacity that normal people use, जो प्राणायाम नहीं करते हैं और जो दिल्ली NCR में खासकर जी रहे हैं, वो किस पोल्यूशन में जी रहे हैं हमको मालूम है. सो लंग्स कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम हम जो यूज़ करते हैं 15 से 20% या 25% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. इवन द हेल्दी वंस, इवन द यंग चिल्ड्रन और एडल्ट हु आर हेल्दी,
लंग्स की कैपेसिटी 20 या 25% से ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन जो मिल रहा है दैट इज only activating 20 to 25% of the lungs, and accordingly the blood purification is happening only 20 to 25% of the capacity. तो हमारे सारे सेल्स एंड टिश्यूज भी कितने रिजुविनेट हो रहे हैं? 20 to 25%. उसी इफेक्टिवनेस में हम जी रहे हैं. So when we do pranayam, and especially those who are in life and breath will know, जो हम योगिक प्राणायाम करते हैं उससे लंग्स की कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है? मोर देन 50 to 60%. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मल प्राणायाम की भी या फिर योगिक प्राणायाम जो हैं, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्यूरिफाई ज़्यादा अच्छा होगा और सेल्स एंड टिश्यूज ज़्यादा अच्छे आपके एक्टिवेट होंगे. यस, सो दैट इज द पर्पस ऑफ प्राणायाम. कौन कौन से प्राणायाम हैं, कैसे प्राणायाम है, कैसे करना है, वी विल कम टू दैट बेसिक टेक्निक्स व्हेन वी कम टू द प्राणायाम, बट बेसिक पर्पस क्लियर हो गया. तो यम नियम आर इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग. And then we have asana and pranayam, which helps us to go to the next higher level of the Ashtanga Yoga. Correct? The fifth one is called Pratyahar. Pratyahar is turning the mind inwards. अब आपका शरीर जो है स्टेबल हो गया है, आराम से पोस्चर में बैठ रहा है, कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में है, आपने प्राणायाम कर लिया, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया. नाउ यू आर टर्निंग इट इनसाइड. टर्निंग इट इनसाइड मीन्स इंद्रियां हमारी बाहर भागती हैं संसार की तरफ. जैसे मेडिटेशन करने बैठते हैं, आपको बॉस भी याद आ जाता है, आपको इन लॉस भी याद आ जाते हैं, आउटलॉस भी याद आ जाते हैं, पड़ोसी भी याद आ जाते हैं, दुश्मन याद आ जाते हैं, सब याद आ जाते हैं. बैठो मेडिटेशन में वैसे नहीं याद आते, मेडिटेशन में बैठो सब याद आ जाते हैं और फिर माइंड भटकता है, भागता है. राइट? तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पहले आसन में बैठ के प्राणायाम करते हैं, सो दैट माइंड हमारे कंट्रोल में आता है, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आती हैं. देन वी फोकस our mind inwards on our breath or inwards in our third eye chakra पे हम focus करते हैं. Right? So turning the mind inwards away from the five senses which are going outward, that is called pratyahar. That is turning inside of your mind. Mind बाहर भाग रहा होता है, उसको अंदर को घुमाना है. ठीक है, क्लियर है ये? That is pratyahar. मुश्किल है? Yes, मुश्किल है, लेकिन अगर आप आसन और प्राणायाम सही करेंगे तो प्रत्याहार आसानी से हो जाएगा विथ प्रैक्टिस. यस. नेक्स्ट, जो बाकी के 3 हैं इनको हायर लिम्स ऑफ योग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ प्राणायाम हो गया, माइंड को हमने इनवर्ड कंट्रोल कर लिया. देन वी फोकस ऑन द 6th वन विच इज कॉल्ड धारणा. धारणा इज कंसंट्रेशन. नाउ यू कैन कंसंट्रेट on your desires. तो मे बी द मटेरियलिस्टिक डिजायर्स और द स्पिरिचुअल डिजायर्स जो भी हैं, अब आप उसको फोकस करके उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल में है, माइंड टर्न्ड इनवर्ड्स है, माइंड आपके कंट्रोल में है, माइंड विल फॉलो व्हाट यू आर सेइंग. सो नाउ यू कैन फोकस ऑन धारणा विच इज कंसंट्रेशन. यस. एंड कंसंट्रेशन इज बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. तो आपने पहले अपने डिजायर्स पे फोकस किया. आप जैसे भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो भगवान से मांगा भी परफेक्ट हेल्थ मिल जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए. आपने धारणा किया, उसका इंटेंशन किया और उस इंटेंशन को आपने मैनिफेस्ट किया. उसके बाद आपने कहा मेरी वेल्थ इंप्रूव हो जाए, मेरा करियर इंप्रूव हो जाए, प्रॉफिट, बिजनेस, ये वो, तो वेल्थ एरिया भी आपका हो गया. रिलेशनशिप में आपने कहा मेरी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाए, गेट मैरिड, एंजॉय ग्रेट फैमिली लाइफ, तो ये सब अभी आपके मटेरियलिस्टिक आपके डिजायर्स पूरे हो गए. फिर आपने कहा मेरे को अब साधना करनी है, सो यू फॉलोइंग योर स्पिरिचुअल साधना, आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं. तो ये आपके धारणाएं हैं, यानी कि इंटेंशंस हैं, जिस पे आप कंसंट्रेट करके वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. दिस इज द 6th स्टेप विच इज कॉल्ड धारणा. यस. तो माइंड आपका काफी फोकस्ड है और जिस चीज पे फोकस करेंगे वहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा. दैट इज अ काइंड ऑफ power that you are having over your mind. That is called dharana. Everybody okay with this? Understanding? As I said, हम details में जाएंगे इस पे. Yes, go ahead. So आपने बोला धारणा के थ्रू जो हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं वो भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं. Yes. So that means जो हम materialist, because we are in the materialistic world and we have lot of materialistic desires, each one of us, Yes. which may be different. So it's not wrong to have those desires No. and getting them. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, आपको तो करना चाहिए.
अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको इनकम भी चाहिए और आपको फैमिली लाइफ भी चाहिए, और हम सब गृहस्थ आश्रम में ही हैं, तो ऑब्वियसली यू शुड हैव डिजायर्स, यू शुड फुलफिल इट ऑल्सो, बट देयर इज अ टेक्निक हाउ वी डू दैट। तो इसी को धारणा बोलते हैं, जहाँ पे आप अटैच नहीं होते। आप पूरे डिजायर्स को फुलफिल करिए, लेकिन डिजायर्स के साथ अटैच नहीं होना है। यही हम सीखेंगे जब when we come to We this have to session. know the difference, the desires with attachment or detachment, what does it mean? क्योंकि आपको ये देखना है, अगर डिजायर्स आपके फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आप अटैच हो गए हैं, इसीलिए फुलफिल नहीं हो रहे हैं। डिजायर्स को पूरा करना है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ नॉन अटैचमेंट लगाना ही पड़ेगा, एंड रिजल्ट्स को डिवाइन पे छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप अपने डिजायर्स को पूरा कर पाएंगे। और यही धारणा का, you can say, the real guru mantra of dharana is how you focus your mind on your desires and manifest them. The manifestation के लिए क्या जरूरी है, and that is important, and nothing wrong in fulfilling your desires. अगर किसी ने ये कहा कि desires नहीं होने चाहिए तो tell them bye bye. मेरी लाइफ है, मेरे desires हैं, मैं पूरा करूंगी, बिल्कुल करूंगी, right? But desires should be such that you will be able to easily outgrow them after some time, and then you say कि भगवान जी, अभी तक आपने मेरे सारे डिजायर्स जो भी मैंने मांगे पूरे कर दिए, अब मेरे को डिजायर्स मेरे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। ये ध्यान है। जब तक आप वर्ल्डली डिजायर्स कर रहे हो या फिर इवन आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, साधना कर रहे हो, देयर इज ए पर्पस बिहाइंड इट, बट then you let go of your attachment to the spiritual journey also, you let go attachment to the materialistic world also, and then you say now I only want you. ये ध्यान है। आप अब ध्यान में लग गए। ऑफ कोर्स बच्चों को भी बोलते हैं हम, पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई में ध्यान दो का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाओ किताब में, और कुछ ध्यान में नहीं आना चाहिए, अभी सिर्फ किताब ध्यान में आनी चाहिए, राइट? तो वैसे ही एक लेवल के बाद साधक बोलेगा मेरे को अब डिजायर्स जो भी थे फुलफिल करता रहूंगा, मैंने सीख लिया कैसे मैनिफेस्ट करना है, बट नाउ आई वांट यू। तो ध्यान इज moving ahead from the desires, from the spiritual, from the materialistic world to the spiritual world and seeking God. That is ध्यान। और जब आप समाधि स्टेट पे पहुंच जाते हो, 8वां स्टेप जो है, तो सीकिंग भी खत्म हो जाती है and you become one with the divine, right? So this is dharana, dhyan and samadhi. These are considered the higher levels of yoga once you have reached जो नीचे के 5 लेवल्स हैं वो पार करके। तो 5 लेवल्स जो नीचे के हैं उनको माना गया है लोअर लिम्स ऑफ अष्टांग योग, एंड आखिरी 3 को माना गया हायर लिम्स ऑफ अष्टांग योग। तो धारणा, ध्यान, समाधि, इसको एक साथ ही बोला जाता है क्योंकि ये हायर लिम्स ऑफ योगा है, राइट? तो समाधि पे कोई ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे, बट यही है, उसमें आप समाधिस्थ हो जाते हो, यू बिकम वन विद द डिवाइन, आपके अंदर डिविनिटी इन्वोक हो जाती है एंड यू बिकम, आपके अंदर मतलब द डिविनिटी विद इन यू एंड द वननेस विद द एग्जिस्टेंस, इसकी कॉम्बिनेशन जब होता है दैट इज समाधि। इट्स ऑल्सो कॉल्ड तुरिया स्टेट। जब आप समाधिस्थ हो जाते हैं तो आप तुरिया स्टेट में आ जाते हैं, जो कि समाधि, सहज समाधि का स्टेट है। यस, सो दिस इज द ओवरऑल overview of all the 8 limbs, and we have also come to the scheduled close time. So I will stop the gyan, take some sharings. Yes. Anybody who has any doubts, any questions? Next session onwards, we will start with the first limb, which is yam, and we will go into the details, and we will also talk of ahimsa, satya, dharm, कौन सा धर्म युद्ध है, कौन सा धर्म युद्ध है, हाँ, सब बात करेंगे उस पर। Yes, so take away from today and learning from anything that you want to share. So Leslie, Gurkirat ji, Nivedita ji, Mamta ji, anything you want to share, ask, please go ahead. So one thing we knew, जो 8 आपने अष्टांग बताए, अलग अलग in bits and pieces we know कि ये भी होता है, ये भी होता है, but इनका एक सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस में हमें ऊपर जाना है to uplift our consciousness. That's something interesting, and to know that this is the path we have to take. Yes. And it has been outlined in a very, very beautiful way, in such a way that अगर एक स्टेप नहीं हो रहा है, हाँ, जैसे मान लीजिए वो बोलते हैं कि अगर आप प्रत्याहार नहीं हो रहा है
तो वहां पे स्ट्रगल नहीं करना, एक स्टेप नीचे आ जाओ। अगर प्रत्याहार पे आप अटक गए हो, यू थिंक योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल, माइंड बाहर भाग रहा है, मैं क्या करूं, वहां पे स्ट्रगल नहीं करना है। वो नहीं हो रहा है, स्टॉप, तो अध्याय करो, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, वापस आ जाओ, प्राणायाम करना शुरू करो, फोकस ऑन प्राणायाम। प्राणायाम पे एक्सपर्टीज नहीं आई है, इसलिए प्रत्याहार नहीं हो रहा है। Your focus, concentration. Maybe I am good at concentration, but I have not followed the lower things. हाँ, बट स्टेप बाय स्टेप जाने से एटलीस्ट ये क्लैरिटी आ जाएगी कि जहां पे आप अटक रहे हो उसके एक स्टेप पीछे आ जाओ, है ना, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। वहां पे थोड़ा सा और फोकस करोगे, देन यू विल सी यहाँ पे ये रोड ब्लॉक हट गया है। अब फिर प्रत्याहार हो जाएगा, फिर आप बोलोगे नहीं धारणा नहीं हो रही है, मैं जो मैनिफेस्ट चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है पूरा, तो पहले प्रत्याहार करो। प्रत्याहार पे एक्सपर्टीज आ जाएगी, यू विल फाइंड दैट मैनिफेस्टेशन बिकम्स इजी। आपकी धारणा सही हो रही है, जो आप इंटेंट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, देन यू विल ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ध्यान। सो ऑल दीज कनेक्शंस वी विल सी 1 to 1 जब हम सेशंस में जाएंगे इसमें। तो अगले सेशन, अगले वीक, नेक्स्ट वेडनेसडे, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लिम्ब ऑफ यम। वी विल लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ द 5 steps। वी विल सी हाउ वी कैन अप्लाई दैट इन अवर लाइफ। तो लुक इनटू द, अभी आपको ओवरव्यू मिल गया है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करके आएंगे कि यम के कौन से 5 पार्ट्स आपकी लाइफ में हैं, कौन से नहीं हैं, और कौन से आपको चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा हम सोच के आएंगे, तो अगला सेशन अच्छा बनेगा। देन यू विल टेक लॉट ऑफ वैल्यूज। तो सिर्फ थ्योरी सुन के फायदा नहीं है, ये कैसे लाइफ में आना चाहिए, कौन सा अभी लाइफ में है और कौन सा नहीं है, ये हमको मालूम होना चाहिए। देन वी विल डिस्कस इट, इट विल बी ए वेरी एंटरटेनिंग सेशन। यस, ऑल राइट, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? अनिरुद्ध जी, गुरकीरत जी। मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि माइंड को इनसाइड पर जाना है, तो माइंड को इनसाइड, जो आपने बताया ना प्रत्याहार, माइंड को इनसाइड, हाँ, टर्न इनवर्ड्स, या टर्न इनवर्ड। तो मेरा अपना यह है कि माइंड को टर्न इनवर्ड करें या आउटवर्ड करें, तो जहां भी करें डिवाइन की गाइडेंस में रहें, तो फिर वो ठीक रहता है। डिवाइन की गाइडेंस के लिए ही तो इनवर्ड जाना है सर। आउटवर्ड में तो वो पड़ोसी क्या कर रहा है, वो रिलेटिव क्या कर रहा है, वो बॉस क्या कर रहा है, ये सब चलेगा। आउटवर्ड में भी क्या होता है, वहां भी जब उसमें भी हम डिवाइन को देखेंगे दूसरों में, फिर डिवाइन ही नजर आएगा, दूसरों में भी डिवाइन नजर आएगा। कनेक्ट होंगे, उसके बाद डिवाइन बाहर देख सकते हैं, है ना। अभी डिवाइन के साथ जो कनेक्टेड नहीं है, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो संसार में मारामारी कर रहे हैं, जिनको घर में प्रॉब्लम है, ऑफिस में प्रॉब्लम है, पड़ोसियों से प्रॉब्लम है, उनको अभी भगवान मिले ही नहीं है, कहीं भगवान नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए तो परेशान है। तो पहले भगवान से कनेक्ट होंगे, उसके बाद भगवान बाहर दिखेंगे, है ना। ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट द डिवाइन विद योरसेल्फ, फिर बाहर देखेंगे। तो 2 एस्पेक्ट हैं जो समाधि स्टेज तक लेके जाते हैं। नंबर 1, इन्वोकिंग द डिवाइन इन मी, एंड देन एक्सपीरियंसिंग दैट वननेस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। दोनों होंगे तभी आप आगे स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन वो ऊपर चढ़ते वक्त नहीं कर सकते, चढ़ने के बाद ये रिजल्ट आएगा, बीच में नहीं आएगा। तो पहले इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन होगी, और फिर आप उसको बाहर लोगों में डिविनिटी देखेंगे। अगर अपने अंदर ही डिविनिटी नहीं आई तो बाहर कहाँ से देखेगा, नहीं देख सकते, राइट। बहुत बढ़िया, लेट्स एक्नॉलेज अनुरुद्ध जी, बहुत गुड। यस, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? Otherwise, we have reached the scheduled close time. Nivedita ji, anything from your side? Good. All right. Amit ji आज शायद थोड़ा सा busy हैं। Amit ji, you want to share something, or is that okay? We will close. Sanjeev भी नहीं आया, he was busy somewhere. So, right. So with this, we come to the end of the session. So thank you very much for your participation. Amit ji joined, but he did not share anything. Yeah, he possibly stuck somewhere outside हैं कहीं पे, यहाँ शोर हो रहा होगा, इसलिए वो आए नहीं है। That's fine. Right? Okay, so thank you very much for your participation. Enjoy a great week, enjoy a great day, and we come back again with lots of wisdom, and the first limb के ऊपर discussion करेंगे अगली बार। तब तक thank you very much, enjoy, take care, good night. Aham Brahmasmi. Thank you. Thank you. Good night. Bye bye.